नमस्कार। चलिए, अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, एक तो वो अदानी रिपोर्ट पे ये वीडियो है, ठीक है, जो कल आई है, ये जो OCCRP की है, और ये एक बॉडी है जो मतलब बाहर की जर्नलिस्ट है उनकी है। अच्छा, अभी उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं। देखिए, इन्होंने एक ट्वीट किया, प्रशांत भूषण जो हैं, वकील हैं, उन्होंने लिखा है कि अनदर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट बाय OCCRP, हाउ मोदी गवर्नमेंट गटेड environmental rules for oil and mining giant Vedanta. Mining and oil giant Vedanta ran a covert lobbying campaign to weaken key environmental regulations during the pandemic. India's government approved the changes without public consultation and implemented them using what experts are saying illegal methods. In one case, Vedanta led a push to ensure mining companies could produce up to 50% more without getting new environmental clearances. Vedanta's oil business also successfully lobbied to have public hearings scrapped for exploratory drilling in oil blocks. It won in government auctions. ठीक है। उसके अलावा देखिए, इनका जो एक और वो था, जो अब मैं उस पर आ जाता हूँ, जो अदानी से रिलेटेड रिपोर्ट के बारे में मैं बात करूँगा। एक उन्होंने प्रशांत भूषण की मैं बात कर रहा हूँ, एक DRI का लेटर, जो DRI चीफ उस टाइम था 2014 में, ठीक है, 31 जनवरी 2014 की बात कर रहा हूँ। इसने सेबी चीफ को एक लेटर लिखा अलॉन्ग विद अ CD with documents showing how Adani siphoned out 6,278 crores by over invoicing to Mauritius and then used for manipulating shares of Adani. तो अब ये लेटर जो है डेटेड 31 जनवरी 2014 है, ठीक है। और ये जो उस टाइम का DRI चीफ था, मतलब ये हम ऑब्वियसली बात है कि 2014 के जो इलेक्शन जिसमें नरेंद्र मोदी चुन के आया था, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। और ये चीफ ने UK सिन्हा को लिखा, जो उस टाइम सेबी का चीफ था और जो आजकल मतलब NDTV के बोर्ड में है। उसने देखिए क्या लिखा DRI चीफ ने। Dear sir, I would like to bring to your kind notice the details of a case being investigated by this directorate against the Adani Group. Two notes detailing the modus operandi of overvaluation in the import of power and other infrastructural plant and machinery by the Adani Group are enclosed. Briefly, the issues relate to gross overvaluation of import of equipment and machinery by various entities of Adani Group from UAE based intermediary. ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। The extent of money siphoned off abroad using the modus operandi of overvaluation elaborated in the note by the Adani Group is estimated at approximately rupees 6,278 crores. Investigations have further revealed that a substantial portion of the siphoned money has been transferred to Mauritius from Dubai, and there are indications that a part of the siphoned off money may have found its way back to stock markets in India as investment and disinvestment in Adani Group. It is understood that SEBI is investigating into the dealings of the Adani Group of companies in the stock market. Accordingly, a CD containing the evidence regarding siphoning off of rupees 2,323 crores related to one note is enclosed herewith. The cases are being investigated by the Mumbai Zonal Unit, Vitthal Das Thakur Se Marg of this DI. In case other documents are required, you are requested to contact so and so accordingly. ठीक है। तो ये लेटर सेबी के चेयरमैन UK सिन्हा को लिखा गया था, DRI चीफ जो उस टाइम था, मिस्टर शाह जो है, नाजिब शाह। और इस लेटर की डेट है 31 जनवरी 2014। तो आप सोचिए
कि कांग्रेस जब गवर्नमेंट थी तो इसके खिलाफ ऑलरेडी अदानी ग्रुप के खिलाफ इस टाइप की मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी थी, जिसमें ये जो है अपना शेयर्स का पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर करके अपनी दुनिया भर की जो एक्टिविटीज़ है वो कर रहे थे भाई साहब। और जब 14 में ही जब इलेक्शन के बाद सरकार बदल गई तो फिर बंदा शेर हो गया। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब है उसके बाद जो अब ये तो आपकी अपनी एजेंसी है ना, जो ईडी मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सर्विस है, उसका अपना चीफ आप किसको लिख रहा है? यूके से ना, सेबी चीफ को, ठीक है, जो आजकल एनडीटीवी जो अदानी का है उसके बोर्ड में आजकल है। सोचिए, आप खुद समझ जाइए ना। इसमें मुझे और कुछ कहने की, जब आपका सरकारी डिपार्टमेंट खुद लिख रहा है कि इतनी हेराफेरी हो रही थी, तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर रिपोर्ट देने में क्या हर्ज है भाई? जो गार्जियन कुछ कर रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स कुछ कर रहा है, तो वो उसके बाद के पीरियड का आपको दिखा रहा है आईना। उसके पहले तो इतना ऑलरेडी हो चुका था। सोचिए, उस टाइम ही इतना था, 6,500 करोड़ के आसपास, तो अब तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया होगा। तो भैया देखिए, ये लूट जो है ना, बिल्कुल, ये कुछ भी डिनाई करता रहे, जॉर्ज सोरोस ने लिखा है, इसने, अरे भाई लिखा कि तुम्हारी आपका अपना सरकारी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कह रहा है ये बात, समझ गए? जॉर्ज सोरोस और उसके अंकल और उसके आंटी पे आपको जाने की कोई बनता नहीं है। वो क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, आपके हरकतें तो आपकी मतलब वो जो गवर्नमेंट उस टाइम में जो मतलब डीआरआई चीफ था वो खुद ही बयान कर रहा है। और उसके बाद आपने क्या क्या कांड किए हैं वो ये वाली रिपोर्ट कह रही है, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने दिया है और ये जो गार्जियन ने दिया है। तो ये भैया इंडिपेंडेंट पेपर्स हैं, आपके बिकाऊ मीडिया की तरह नहीं है कि भोपू जो आपके मोदी ने बोल दिया, मोदी साहब ने उसको ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे दिन भर। अब बिना जो है वो मतलब कि वो जो 1 नेशन 1 पोल 1 नेशन जा फालतू में, अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ आया नहीं सिवाय एक कमेटी अपॉइंट करने के, और वो बेसिकली कोर्ट में एक सेकंड नहीं टिकने वाला। पहली बात तो यहीं से पास नहीं होगा। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप भोपू मीडिया के सहारे जो है, आपका अपना मीडिया है बनाया हुआ, ख़रीदा हुआ, उसके सहारे आप लगे हुए हो कि जॉर्ज सोरोस ने कह दिया, फलाने ने। अरे भैया, जॉर्ज सोरोस ने नहीं कहा है, ये आपके खिलाफ आपकी अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ठीक है, आपके अपने डीआरआई चीफ की रिपोर्ट है, और वो विद एविडेंस आपको दे रहा है सीडी के साथ। यूके सिन्हा को उसने दिया। उसके बाद गवर्नमेंट बदल गई तो फिर सब कुछ बदल गया भैया, पापा जी आ गए, बात ही ख़त्म हो गई। तो अभी देखो, अब इसके अलावा मुझे कुछ खास कहना नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट उस टाइम की इसको ब्लेम कर सकती है, अदानी के खिलाफ प्रूफ दे रही है, तो मैं 100% जो गार्जियन ने फाइनेंशियल टाइम्स में जो सबूतों के साथ कहा है, मैं इसको 100% मानता हूँ। 100 क्या 200% मानता हूँ, बिल्कुल सही है। और कोई कुछ भी कहता रहे, सब बेकार है। मैं तो हैरान हूँ कि इस पर जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो क्या कर रही है भैया। आप ज़बरदस्ती की बात है, इतनी आपके पास एविडेंस है, एक चिट्ठी तो ये मतलब प्रशांत भूषण ने लगा दी, तो ये सब पे क्यों नहीं जांच हो रही है अभी तक? आप उस इंसान को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं भाई? साफ लिख, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर लिख रही है। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर है कि इसको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल साफ जो है उसको सामने लाइए, जो दोषी है उसको आप डॉक में खड़ा करिए और उसके अगेंस्ट केस फाइल करिए। जय हिंद, जय भारत।